ठीक है। वो बीच में एडिट कर लेंगे ना। अच्छा एडिट हो जाएगा। आपको पता है जी मैं पहली मतलब इस साल जी। मेरा ओरिजिनल प्लान था गीर जाने का। फिर ये लाइन के लिए। ये कप के लिए मैं इधर आ गया। हाँ। वहाँ पे जाके कप देखना है। हाँ। देखते हैं कप मिलता है कि नहीं। लाइन वो तो का? लाख पे है। लाइन का कि टाइगर का? नहीं टाइगर टाइगर का। हमारा पूरा फोकस कब पे रहेगा? देखते हैं फिर। पूरा कब पे रहेगा? आज कप का साइटिंग हुआ है। आज कब का हुआ है? कल हुआ था। कल नहीं हुआ। आज जो हुआ है वो कितने दिनों के बाद हुआ है कप का जो ये sighting? आज का आपका हुआ है वो वाला दूसरा टेरिटोरी वाला वही नहीं। हुआ है, रेगुलर वाला नहीं हुआ। ओ, तो रेगुलर वाला जो होना वो है 4-5 था ना, एक बीच में मर गया या हाँ, हो गया। वो होने वाला है। वो होने वो वाला कितने है। दिनों तक नहीं वो दिखा। आपके ही टाइम पे होगा। वो आपके ही टाइम पे होगा सर, क्योंकि Hello and welcome to Eddie Vlogs. This video is about my journey to explore the central Indian forests in search for a rare sighting of tiger cubs in their natural habitat. I set out for Panna in Madhya Pradesh. From Howrah, I took a train to Satna Junction, which is 90 kilometers away from the Madla Gate of Panna Tiger Reserve. My guide cum tour facilitator had sent a sedan to pick me up. Satna is one of the largest cities of Madhya Pradesh and has been developed as a smart city, but immediately after leaving the city limits, it's a drab journey through barren, arid land which is rather boring. A part of the route towards the end of it also passes through the Eastern Ghat area with twisties making it somewhat charming. Finally, after an arduous journey of more than 2 hours, I was at my accommodation. It is called the Bundeli Virasat. About 6 Swiss tents set up across a sprawling campus right next to the highway that brings you here. This is how the facilities are inside the tent. The toilet impressed me quite a bit. This is set up in the backdrop of an artificial village. It is an excellent place to spend time even without a jungle safari. Next morning, very early at about 5 am, I began my tiger sojourn. The Madla Gate was about 2 kilometers away from my accommodation. And even at 5:15, there was a 10-car queue ahead of me at the gate. At 5:45, the gates opened, allowing the tourists inside. And it was not very long before we had our first wild sighting of the day, a sloth bear. It even crossed the road and paused briefly to pose for a shot I managed to capture. We then continued on our search for our cherished target,
the tiger and its cubs, but for quite some time had to content ourselves with sunbursts, spotted deers, wild boars, and so on, with not even a sign of any tiger in the vicinity. But the search must go on until it succeeds. Every time there was even a whisper about a suspectful motion inside a bush, all the cars would immediately rush to the spot and start jostling for the best position to grab a view, in case the whisper turns out to be true. I came across quite a few camera traps installed at various places throughout the jungle, but the forest guards won't say a word about any movement captured by them. At around 9 am, we decided to break for breakfast. Like all other jungles, there was this place for the tourists to gather and freshen up, with washrooms and other necessary facilities. Next, I came up at this location within the jungle, famously known as the Vulture Point, located in the middle of the tourist area. There are hordes of vultures to be seen or photographed. And then, finally, at around 11, towards the end of the safari timings, arrived our moment of truth. The majestic yellow beast with black stripes was spotted inside a bush. Tigress P141, the one with the cubs, the one we have been chasing since morning. But she was alone. Post lunch, I rushed for the afternoon session, hoping to begin where the morning session ended. There were only 2 cars which were lucky enough to sight the tiger in the morning session. I was excited and restless to begin the afternoon.
This waterhole is a place where it is guaranteed that you will get to see the sambas and spotted deers from close proximity if you have kids along for them to enjoy. We scouted the entire area where the morning sighting happened throughout the afternoon, but the excitements ended with a whimper instead of a bang. The next morning began with a very unpleasant surprise. There were thunderstorms since 4 am and the day's program seemed to be in complete jeopardy. We were allowed a late entry into the jungle at around 6:30 am. If the conditions continued, there was very little chance of any significant sighting. I had so far come across the tigress, but the cubs were still elusive, hidden somewhere away from the public gaze. But fortunately, the weather cleared within an hour, and as luck would have it, we spotted the two cubs along with their mother, performing their morning routine by the Ken River. They were quite far on the other bank of the river, but something is always better than nothing. No trace of the tiger family could be tracked over the rest of the day. They just vanished. We could only manage other wild species like this golden jackal, which unusually remained in quite close proximity to my vehicle. So that's how my 4 safari sessions ended, with 2 tiger sighting sessions. Now I shall share my conversation with my guide cum tour facilitator, Sri Mahesh Omreji, who is a very senior figure in the tiger tourism circle of Madhya Pradesh. It was very informative and interesting if you watch the entire conversation. अच्छा, असल में क्या है, पन्ना एक इतने बुरे समय से गुजरा है। मतलब पन्ना में 2004-05 से लेके धीरे धीरे टाइगर खत्म होना शुरू हो गए थे। खत्म मतलब कितना हो गया था नंबर? वैसे पन्ना के पुराने टाइगर के आंकड़ों को देखा जाए, काउंटिंग को, तो 45-50 टाइगर होते थे पुराने आंकड़ों पे। अच्छा। पुराना काउंटिंग, पुराना सेंसस था जो, वो 45 और 50 का था। लेकिन ये बहुत पहले से ख़त्म होना शुरू हो गए थे, लेकिन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाया, ना इस पे जल्दी वो लोग दिमाग लगा पाए कि पन्ना में टाइगर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट मैनेजमेंट उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सीरियस भी नहीं था, सीरियस भी नहीं था, जंगल उतना प्रोटेक्ट भी नहीं होता था, बहुत पोचिंग होती थी। और अभी तो पोचिंग वोचिंग का चक्कर नहीं है, अब ये कुछ भी नहीं है। तो 2004-05 से जहाँ तक याद है मुझे, क्योंकि मेरा काम जो स्टार्टिंग था वही इसी टाइम से था, 4-5 से जो मैंने अपना ये काम शुरू किया। मतलब 20 साल हो गए आपका? बिल्कुल 20 साल हो गए। अरे बाप रे। तो यही करते करते तो जब धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो जो टूरिज्म एरिया था वहाँ पे टाइगर दिखाई देता था। लास्ट 2006 तक टाइगर दिखाई दिया टूरिज्म एरिया में। 2006 के बाद खत्म दिखाई दिया। लास्ट टाइगर मैंने खुद देखा था 2006 में, जहाँ तक मुझे याद है। उस समय मैं किसी फॉरेनर के साथ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रोफेशन था जो, वो मैं ड्राइविंग करके जाता था जंगल के अंदर, जिप्सी। अच्छा, खुद ड्राइविंग करके जाता। मतलब आप गाइड भी होते थे? और नहीं, गाइड बाद में हुआ मैं। ओ पहले? अच्छा, पहले मेरा फर्स्ट प्रोफेशन मेरा वही था। तो वो मतलब मैं गया जब टूरिस्ट को लेके, तो मैंने लास्ट टाइगर जो देखा था, जो मेरे साथ फॉरेनर थे, उन्होंने उस टाइगर का फोटो उस टाइम पे पोस्ट से, और मेरा फोटो पोस्ट से भेजा था मेरे लिए। अभी भी रखा होगा, याद नहीं कहाँ है, लेकिन है। तो उसके बाद फिर पन्ना में कोई टाइगर नहीं मिला।
कोई टाइगर नहीं दिखा 2006 के बाद। फिर धीरे धीरे इस चीज़ पे लोगों ने, मैनेजमेंट ने शोध किया, ध्यान दिया, और फिर फाइनली हुआ क्या कि पन्ना टाइगरों से खत्म हो चुका है, कोई टाइगर नहीं है। ये सच में हुआ था? सच में हुआ था। एक भी नहीं? एक भी टाइगर नहीं था। सोचिए, ऐसे टाइम पे भी हम लोगों ने काम किया यहाँ पे कि टाइगर के नाम पे लोग आते थे और उनको टाइगर दिखाई नहीं देता। वो ठीक है, जंगल है, नेचर है, नहीं दिखेगा, बट है तो है ना। हाँ, है तो और जब है ही नहीं है तो दिखेगा क्या? ये ऐसे ऐसे समझ से भी पन्ना बीता। उसके बाद फिर 2009 में जब धीरे धीरे ये टोटली प्रूव्ड हो गया कि पन्ना में टाइगर नहीं है, तो 2009 में फिर यहाँ पे टाइगर री इंट्रोड्यूस किए, बाहर से लाके। जैसे कूनो में चीता किया हुआ है ना एमपी में। इंडिया का एक जगह ऐसा है कूनो, जहाँ पे चीता री इंट्रोड्यूस किया, पता होगा आपको। तो कूनो में जैसे किया, वैसे ही सेम 2009 में पन्ना ने किया था टाइगर को। एक एंक्लोजर बनाया था बहुत बड़े एरिया में, जंगल में, ग्रासलैंड में, और टाइगर को लाके पहले उसके एंक्लोजर में डालते थे 4-5 दिन के लिए। जब वो पूरा जंगल में वैसे हो जाता था कि अभी रिलीज करने लायक है, तो फिर रिलीज कर देते थे। तो उस टाइम फर्स्ट एक फीमेल लाए थे पन्ना में, जिसको नंबर दिया था यहाँ पे T1, और उसके गले में एक कॉलर पहनाया ट्रैकिंग के लिए, और एक टीम पीछे लगाई टाइगर के, जो 24 आवर्स टाइगर को फॉलो करते थे, टाइगर कहाँ जा रहा है ये पूरा उसको टीम कंटिन्यू वॉच करती थी, फॉलो करती थी। ठीक है, तो ऐसा करते करते जब वो फीमेल पूरी तरह जंगल में रहने लगी और अच्छे से वो उसने टेरिटरी बना ली, तो फिर सेकंड फीमेल को यहाँ पे लाए। वो पहला वाला T1 मेल था, फीमेल था बांधवगढ़ से। अच्छा। सेकंड फीमेल तो मतलब T2 लाए। फिर फर्स्ट फीमेल बांधवगढ़ से, सेकंड फीमेल कान्हा से, एंड उसके बाद 2 फीमेल को जब शुरू में लाए तो फॉरेस्ट वालों का कहना था कि यहाँ पे मेल अभी भी है, बट मेल टाइगर भी नहीं था। कहाँ से जनरेशन हुआ, कहाँ से कुछ हुआ, सिर्फ 2 फीमेल थी। लेकिन मैनेजमेंट ये बोल रहा था हमारे पन्ना में मेल है कहीं ना कहीं, बट वो भी नहीं था। उसके बाद फिर एक मेल को लाके भी छोड़ा यहाँ पे, मेल टाइगर को। जब T3 मेल टाइगर को लाए तब पन्ना में बहुत कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हुए, क्योंकि जो 2 फीमेल थी उन्होंने तो टेरिटरी बना ली अपनी, लेकिन जो मेल टाइगर लाए जब उसको छोड़ा तो मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं रुका था पन्ना के जंगल में। उसके बाद भागता गया। कहाँ गया? जहाँ से लाए थे वहीं भाग रहा था। पेच से लाए थे, पेच की तरफ ही भाग। मतलब ये क्या पेंच से जुड़ा हुआ है ये पन्ना का पूरा फॉरेस्ट, एमपी के जितने भी फॉरेस्ट थे 4 से 5 टाइगर रिजर्व, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, 5 एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इनके सभी के कॉरिडोर है, कहीं से भी मैमल्स जानवर आ जा सकता है। और ये पन्ना क्या बांधवगढ़ से कान्हा से फिर सॉरी बांधवगढ़ से फिर संजय डुबरी भी है, पेंच है, फिर कान्हा, ये सब कनेक्ट हैं अंदर कहीं से नहीं। मतलब इनको सोचिए कि पेंच से लाके यहाँ पे छोड़ा गया, तो ये क्या अपना पुराना जगह, मतलब वो उसको पता होता है, सेंस करते हैं, ये इतना सेंस करते हैं टाइगर। उसको समझ तो आ जाएगा समझ में कि मैं नया जगह पे आया हूँ, लेकिन मेरा पुराना जगह कहाँ है, किस तरफ है, टाइगर उस समय भागता है, वो जगह ढूंढने की कोशिश करता है और उसको ऐसे क्लू मिलते जाते हैं जिसकी बदौलत वो भागता जाता है। एक बात बताइए फिर, सोचिए कि ये यहाँ से पेंच लौट रहा है, तो बीच में तो दूसरे टाइगर का टेरिटरी आ जाएगा, तो फाइट हो जाएगा, हो सकता है। वो सिर्फ पास ऑन करेगा, वहाँ से सिर्फ पास ऑन करेगा, निकलेगा वो भी नाइट में। उस बीच में उसको पूरा टोटली फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ एरिया उसको ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे उसको गांव मिलेंगे, बफर एरिया मिलेंगे, फार्म हाउस मिलेंगे, लेकिन वो निकलेगा रात में, जाएगा। आपने बहुत सी ऐसी बातें सुनी होंगी, वीडियोस देखे होंगे जो वायरल होते हैं कि टाइगर फार्म हाउस में घुसा हुआ है, टाइगर गांव में घुसा, वही कांड होता है वो। अच्छा, वही कांड होता है वो। अच्छा। और उसमें एक इस कांड के साथ साथ दूसरा एक और चीज होता है वो टाइगर मैनिटर हुआ होता है, जंगल से किसी दूसरे टाइगर से लड़के भगाया हुआ होता है। काफी रीजन होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता है, 2-3 रीजन होते हैं। अच्छा, तो वो 200 किलोमीटर भागा था फिर 1 मंथ में, 1 मंथ 200 किलोमीटर्स में उसको पूरी टीम ने फॉलो किया, और बीच में वापस भेजने के लिए बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन वापस नहीं आ रहा था।
फिर यहाँ मैनेजमेंट ने एक टोटके का काम किया। किसी ने बोला कि इस मेल टाइगर को दोबारा से फिर ट्रैंकुलाइज करो, रेस्क्यू करो और फिर पन्ना में डालो। लेकिन डालने के पहले पन्ना टाइगर से लेस है। जब वहाँ पे किसी टाइगर का इसको स्मेल नहीं मिलेगा वो कैसे रुकेगा? कोई फीमेल्स की यूरिन की मार्किंग नहीं मिलेगी, वो कैसे रुकेगा? तो बोले अब यूरिन कहाँ से लाएंगे टाइगर की? बोले जू से यूरिन लाएगी। जू से एक टीम भेजी तो यूरिन को कलेक्ट किया टाइगर की, और एक टीम को लगाया, उसको फिर रेस्क्यू किया, ट्रैंकुलाइज किया। इधर एक टीम जब जू से यूरिन लेके आई तो जंगल में आर्टिफिशियल मार्किंग करवाया जहाँ उसको रिलीज करना था। उसको जब फिर तो ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे फीमेल है, टाइगर है, हमारे लिए चैलेंज है, हमारे लिए टेरिटरी है, हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि टाइगर सब कुछ सेंस करता है। अपने रहने के लिए जो भी परफेक्ट चीज़ें होती हैं वो सब सेंस करता है। तो वो यूरिन लाके जंगल में बहुत बड़े इलाके में मार्किंग करवाई थी, और फिर उसको जब रिलीज किया दोबारा तो वो रह गया, रुक गया। उसके बाद एक हफ्ते बाद देखा कि वो T1 के साथ मैट कर रहा है। मतलब फाइनली सक्सेस हुआ वो आर्टिफिशियल मार्किंग। उसके बाद देखा एक हफ्ते 10 दिन बाद की जो सेकंड फीमेल टाइगर थी T2, उसके साथ भी मैट कर रहा है। बिल्कुल 90 to 100 डेज के बाद देखा कि पन्ना की पहली फीमेल टाइगर्स ने पन्ना में बर्थ किया। वो पन्ना के लिए फर्स्ट गुड न्यूज़ थी टाइगर बर्थ की, जिसकी फोटोज ये है। जो फर्स्ट फोटोज फाइंड 2006 की बात पहली बार। अच्छा, ये 2009 में शुरू किया गया था एक्चुअली, 2-3 साल के गैप के बाद। और ये हुआ कब खत्म या शुरू? या शुरू? ये जो पहली लीटर जो आया वो कौन से साल में? ये पहला फीमेल जो छोड़ा गया था 2009 में। ये फर्स्ट फीमेल टाइगर है पन्ना की जो फर्स्ट क्लिक किया गया था। अच्छा, ये है T1? ये T1 है। अच्छा, ये T1 है जो फर्स्ट फीमेल पन्ना में छोड़ी गई थी, जो अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थी वल्चर पॉइंट पे, जिस जगह को हम शायद आपको दिखाने ले चलेंगे। 80 मीटर डेप्थ है, 70 to 80 मीटर डेप्थ है, जिसको ऊपर 80 मीटर हाइट से हम देखते हैं, जिसके नीचे टाइगर लेटा हुआ था। वहाँ से फोटो क्लिक किया। ये पन्ना का फर्स्ट गुड न्यूज़ था। अच्छा, और ये था 2009? ये था 2009। अच्छा, और ये रहे वो आपके मूर्ति साहब जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। आज पन्ना में जो भी टाइगर है इस आदमी की बदौलत है। अभी ये इंसान है, एक ऑफिसर है, अगर होगा तो कल इससे भी आमना सामना तो करवाएंगे, बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी आया है 2020 में रिटायर्ड हो गया था। आज ये पन्ना का टाइगर का गॉड है, भगवान है, जिसने पन्ना में आज 80 टाइगर करके दिखा दिया। 80? और टूरिज्म एरिया में कितने? टूरिज्म एरिया में 15 to 18 टाइगर। अच्छा, 0 से 80 टाइगर की कहानी है ये। और ये 15-20 इसका पूरा एरिया कितना है टूरिज्म एरिया का? स्क्वायर किलोमीटर कितना? टूरिज्म और नॉन टूरिज्म को टोटली देखते हैं तो 1600 होता है। हाँ। जिसमें 576 कोर है, 126 बफर है, दोनों मिला के 1600 होता है। और टूरिज्म की मतलब कोर की टूरिज्म की अगर हम बात करें तो वहाँ का एरिया होता है 115 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें रहता है ये 20%। 20। जैसे 576 स्क्वायर किलोमीटर का जो भी 20% एरिया होगा वो समथिंग 115 होगा। उसमें 15 टाइगर है मेल फीमेल कप्स को लेके। आज की डेट में पन्ना में टोटल 85 प्लस टाइगर है। तो ये टाइगर रीइंट्रोड्यूस की कहानी है। और जो जब टाइगर बर्थ हुए यहाँ पे तो बोले ये मूर्ति साहब के ही दिमाग चलते रहते थे, उनका ही आइडिया होता था। तो जब यहाँ पे जो फर्स्ट फोटो मैंने दिखाया उसके 2 बच्चे सर्वाइव किए थे, दोनों मेल थे। उसको मैनेजमेंट ने नंबर दिया था 111-112। 111-112 क्यों नंबर दिया था? क्योंकि 111 समझना आप, माँ है एक, उस माँ का फर्स्ट लीटर, वो इसलिए फिर एक आ गया। और उसके बाद जो उसका बड़ा बेटा है फिर उसका एक। अच्छा, 111 और उसका जो भाई था उसका नंबर था 112। समझ गया। अगर सेकंड टाइम वो बच्चा देगा तो उसका नंबर आएगा 121, 122। हाँ, समझ गया। आपको टूरिज्म एरिया में जो भी टाइगर देखने को मिलेगा 141,
151। अच्छा 2 3 4, अच्छा ये चौथा फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ लेटर है हाँ, हाँ। T1 का ठीक, टूरिज्म ठीक, एरिया ठीक, में। ठीक। तो अब आपको बोलेंगे 151 141, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये नंबर ऐसा क्यों है, क्यों है? क्योंकि उसके साथ उसकी मदर और ग्रैंड मदर ठीक, का भी ठीक, नंबर ठीक, लिया जा एकदम, रहा है। बिल्कुल। इसमें समझ में आता है कि ये किसका बेटी पोती है होता है, ठीक, ठीक। ये समझ में आता है। ये कहानी है इसका। वैसे तो सीधा नंबर बताने से बोरिंग लगता है, क्या इतना बड़ा नंबर है, इतना टाइगर हो गया का 151 या 151 काउंट है क्या टाइगर का, इतना बड़ा नंबर कैसे? लेकिन इसका नंबर का रीजन कुछ और ही है, ये है। तो ये सिर्फ T3 तक सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, इसके बाद T4 T5 T6 T7 4 टाइगर और रिलीज किए थे पन्ना में, जिसमें से T4 ने भी कुछ 1 या 2 बार कब्ज दिए थे। T5 ने 1 बार कब्ज दिया था, जिसका कब्ज बड़ा होने के साथ साथ पहले माँ डाई हुआ, फिर बच्चा कुछ दिन रहा वो भी डाई हो गया। तो T5 का कोई नहीं, पूरा माँ बच्चा एक ही बार बर्थ किया और वो एक्सपायरी हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे T6 लाए थे। T6 की भी जनरली काफ़ी सारे संतानें हैं पन्ना में, जैसे जो मेल टाइगर है 663 652 सुना होगा आपने, ये T6 की जनरेशन है। 621 जो भी कुछ दिन पहले एक मेल टाइगर मिला था। आपने शायद सुना होगा बहेलिया, पारधी। हाँ इसका सुना है पारधी एक ऐसा कम्युनिटी है, पारधी के बारे में सुना है। पारधी एक ऐसा कम्युनिटी है जो टोटली जंगल पे डिपेंड होता है। मतलब चप्पा चप्पा पता है उसको? उसको चप्पा चप्पा पता है, जंगल को कैसे जड़ी बूटी इकट्ठा करना है, कैसे जंगल के जानवर को मारना है, कैसे जंगल से इलीगल एक्टिविटी करना है, जो भी आवाज़ निकालता है तो जानवर को भी कंफ्यूज करता है। जो पारधी कम्युनिटी था, तो मूर्ति साहब ने उस पारधी कम्युनिटी को भी पकड़ा, क्योंकि पारधी कम्युनिटी सिर्फ फॉरेस्ट की जड़ी बूटी, जंगल का जानवर, जंगल का जो भी चीज़ है वो मार के निकाल के बना के बेचता था, उससे अपना घर बच्चा का खाना पीना भोजन चलाता था। तो फॉरेस्ट के मूर्ति साहब ने जो पारधी कम्युनिटी था उसको पकड़ के उसको रहने के लिए जगह दिया, उसको अच्छा एजुकेशन लेवल दिया, सब कुछ दिया, उनको सब कुछ दिया। तो 50 to 70% तो इलीगल एक्टिविटी वहीं पे खत्म हो गया। ये मूर्ति साहब का किया हुआ है। और एक ऐसा गाइड है हमारे बीच में जो पारधी कम्युनिटी से है, जो आज गाइड का काम करता है। अच्छा, और ये वो तो भी बढ़िया लड़की, बात है। हाँ। वो भी लड़की, अच्छा वो भी लड़की। पेश में भी मुझे दिखा था, बहुत लड़कियां गाइड हाँ, का काम करते हैं। हाँ, तो पेश ये में। पारधी जो है एक्चुअली पारधी कम्युनिटी का लड़की था, जो उसके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जंगल के अंदर शिकार करना, जड़ी बूटी इकट्ठा करना, उससे ऑयल बनाना, जड़ी बूटी बनाना, दवाई बनाना, बेचना, बर्ड्स, दुनिया भर का जो भी है सब करते थे वो। उनको भी निकाल के अच्छा एजुकेशन लेवल, आप दूसरा बिजनेस भी कर सकते हो, जंगल को प्रोटेक्ट करके, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें में चेंजिंग हुआ है, तब आज जाके पन्ना इस लेवल पे खड़ा है, तब जाके आज पन्ना इस लेवल पे खड़ा है। नहीं तो पन्ना को सर कोई नहीं जानता था। नहीं पन्ना बहुत फेमस है। वो आज क्या बात फेमस कर रहे है, हो? आज, अच्छा वो बट बिफोर टाइम बोल रहा हूँ मैं। जैसे कान्हा बहुत पहले से फेमस है, बांधवगढ़ बहुत पहले से फेमस है, बट पन्ना को नहीं कोई जानता था, क्योंकि पन्ना आज पॉपुलर हुआ है। So I shall end this video here. I hope you enjoyed it, and if you did, please do click on the like button and share it with your friends and family. And if you are new to this channel, please don't forget to subscribe and hit the bell icon to get notified every time I upload a new video. If you have any comments or queries, please feel free to mention in the comment section below. I shall try to respond as early as possible. Thanks for watching. See you in my next video.